Gaurav ji, these 10 days were really amazing experience. So many new learnings, so many new methods. I'm really grateful to you, thankful to you, blessed. Thank God that no, we have met and we are sharing our experiences with you. It was really, really wonderful learning. Same thing, but with a different and correct method. So I can inculcate in this with initially with me, with my friends, with my family, with my students, and it was really very great, sir. Thank you so much for these 10 days, and it was really great. If you have any other uh, you know teachings which you think we are at least we deserve to be taught by you, please get in touch with us, sir. Thank you so much. Thank you, And Suchi. thanks a lot, sir. Thanks a lot. Thank you so much, Taking Suchi. everyone's leave, new friends. It was really nice meeting you guys. And it was wonderful having a session with you all. Thank you so much for being there. Happy yoga and Same happy here. Thank you. Bye. Thank you. Also, Thank Okay, you Suchi so ji. much. Same Thank you. here. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Yes, I have Z. so after this, like after other than practicing daily, right, sir? So how do you think we can progress? I think Progression we have comes so with much room to progress because of my level, super beginner. no issues, no issues. Everyone have to start somewhere, isn't it? Until the time we will start, how we will progress. So first thing is needed starting. So start. That's it. So the moment you will start, now progression depends on your determination and commitment and practice and consistency. The more you will be consistent with your practice, the better you will progress. If you are on your way, let's say in that street wherever you live, and there is a shopping mart somewhere, and if you are going from home towards the shopping mart, there should be a distance, particular distance, right? Let's say there is a 2 kilometer distance. Okay, you're on your way, but in that way there are many other things also in between, Yeah. right? So if there are so many things, distracted things around, and instead of reaching to that shopping mart, you are sometime you are entering this food court, sometime you are entering this different shops, sometimes friends home, sometimes somewhere. How will you reach here? Even though the distance is small, only 2 kilometers. So you have to stick to that with the consistency on that path, so that until unless you reach there. So till that path, if you are there with consistency, you will reach, depending how fast you are moving. Are you walking? Are you running? Are you on the bike? Are you in the car? Depends how fast, right? But even if you're on the car and you're not going straight, you're going left and right, you won't be able to reach, right? So we need consistency, not the speed. This is what where I'm coming. We don't need too much in one day, but we need consistency every day. So if you do consistent effort every day, you will reach for sure in that path without getting distracted. So it's all about practice and consistency. Just practice with consistency, you will reach there. All right. Yeah. Thank you so much, teacher. Okay, Zaid. Yes, anyone else have anything to ask? Otherwise, you guys can keep on leaving. If you have something to do, guys, I will not stop you. Bye-bye. Thank you, Zaid. Thank you so much, teacher. Namaskar. यस सर। सर मुझे ये बोलना था कि आज मुझे मेडिटेशन में थोड़ा एक्सपीरियंस आया। 2-3 सेकंड्स ना ऐसे डीप 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 ओशन में जा रही थी, उससे पानी का आवाज भी आ रहा था, जैसे पानी का आवाज आता है, और ब्लू 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 ऐसे। वो तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ था, थोड़ा ये कभी नहीं हुआ था, बट बस बहुत कम टाइम के लिए, मे बी 2-3 सेकंड्स। Okay. जैसे कि बहुत डीप ओशन में जा रही हूँ, उसका आवाज भी बहुत जोरों से आ रहा है, एंड कलर भी दिख रहा था बहुत ब्लू ब्लू ब्लू, और बबल्स बबल्स बबल्स, और अच्छा लग रहा था। बस ये तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, बट पेनिंग की वजह से मैं वापस आ रही थी, पेन भी हो रहा था, और ब्रीदिंग तो ठीक था सर, लेकिन जब प्राणायाम करते हैं तो थोड़ा सा फिर से वो ड्राइनेस आ रहा था। मैं घी खाना शुरू कर दिया है तो थोड़ा कम हो गया है वो ड्राइनेस, थोड़ा नोज में इचिंग भी हो रहा था। मुझे वैसे कोल्ड वगैरह नहीं है। थोड़ा सा घी आप नोस्ट्रल में भी लगा सकते हो। ओके। वरना नॉर्मल ऑयल, कोई भी कोकोनट ऑयल या फिर सरसों का तेल, एक एक ड्रॉप डाल सकते हो रात में। अच्छा। वैसे स्पेशल ऑयल्स भी आते हैं नोस्ट्रल्स के लिए,
लेकिन अगर नहीं जाना, नॉर्मली जो भी घर का तेल है वो लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं। राइट सर। और सर एक मेरी बेटी का फ्रेंड है, उसको अस्थमा है, 10.5 to 11 years होगा मैक्सिमम। तो उसका उसके लिए कुछ प्राणायाम करवा सकते हैं क्या हम उसको? क्या हाँ मतलब बिल्कुल मुझे करवा तो पता सकते नहीं। हैं, बिल्कुल करवा सभी सकते हैं। देखो, अच्छा, जो मर्जी होती है किसी को बीमारी, जो मर्जी बीमारी, इंसान फिर भी जी तो रहा है ना। उसका मतलब सांस का ही है, तो उसके लिए मुझे पता नहीं था क्या नहीं, करना है। वो जी तो रहा ही है ना। कोई राइट भी राइट। बंदा है, कोई भी इंसान है, वो अपनी लाइफ में पूरे दिन में कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है ना, है ना। जब वो उसके अराउंड जी पा रहा है, तो हम वही चीजें क्यों नहीं दे सकते उसे? अगर वो सांस ले रहा है, ठीक है, अभी सांस लेने में उसे दिक्कत आ रही है, क्या हम उसकी सांस को, क्योंकि नॉर्मली एस्थमेटिक पेशेंट्स को ठंडी चीजों से ज्यादा दिक्कत होती है, एनवायरमेंट से, ठंड वाले एनवायरमेंट से दिक्कत होती है ना। जब ठंड वाले एनवायरमेंट से दिक्कत है, तो क्या हम उनको कुछ ऐसा दे सकते हैं कि नमी में दे? जैसे स्विमिंग पूल में एक्सरसाइज करना उनके लिए सबसे बेटर होता है, क्योंकि मॉइस्चर वाली एयर होती है स्विमिंग पूल में, ठीक है। तो उनके लिए स्टीम बहुत अच्छी होगी। वेलकम बैक हिना जी, है ना। स्टीम वाली एयर बहुत अच्छी होगी, तो उन्हें अगर स्टीम में वो ब्रीद इन करें डीप एंड लॉन्ग स्टीमर के सामने, तो वो अच्छा होगा उसके लिए। तो अच्छा। स्टीमर में वो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, लॉन्ग डीप इनहेलेशन, चेस्ट ब्रीदिंग या योगिक ब्रीदिंग टाइप का वो स्टीमर के सामने कर सकता है। बहुत स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग स्टीमर है, बिल्कुल लाइट वाला जो कि बिल्कुल मॉइस्चर वाली एयर फेंकता है, उसके सामने करेगा, बहुत अच्छी उसकी ब्रीदिंग प्रैक्टिस हो सकती है, तो वो कराओ। तो हमें तो कंडीशंस के हिसाब से कराना है ना, चीज हम सब करा सकते हैं, कंडीशन देनी पड़ेगी। क्योंकि उसके मम्मी ने ही मुझे बोला कि नहीं नहीं, डॉक्टर ने उसको बोला है कि उसको प्राणायाम करवाओ, और उसके सब फ्रेंड है, तो मैं सोच रही थी उनका ले लूं, लेकिन फिर मुझे देखो, थोड़ा लेकिन कॉन्विंस करना उसको है। प्राणायाम कराने में, दूसरों को प्राणायाम कराने में यही फर्क होगा कि उसको हम सेम टेम्परेचर में प्राणायाम नहीं करा सकते। अगर राइट। बहुत ड्राइनेस हो जाएगा तो उसको और ज्यादा दिक्कत होगा, हम्म। है ना। तो हमें उसे मॉइस्चर वाला प्राणायाम कराना है, मतलब कि स्टीमर के सामने, या अच्छा वो स्टीम ले, जैसे स्टीम वाले रूम्स होते हैं, स्टीम में वो डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन वो अच्छा है उसके लिए, है अच्छा। ना। बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि घुटन ही होने लग जाए, वो नहीं, बिल्कुल हम्म। लाइट, बिल्कुल लाइट। या फिर जो रूम में सिखाते हैं उधर एक छोटा सा वो स्टीमर मिलता है, अगर वो भी स्टीमर, लगाते हैं उसके पे, बिठा और दिए पे, और लेकिन प्योर उसको और सब प्योर कुछ। प्योर एयर होनी चाहिए, क्योंकि एस्थमेटिक पेशेंट्स वैसे ही, क्योंकि पॉल्यूटेड एयर में बहुत ज्यादा वो नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए प्योर एयर होनी चाहिए। तो एयर में ही अगर एयर फ्रेशनर लगा हुआ हो रूम के अंदर और वहीं पे हो रही हो चीज, तो ज्यादा अच्छा है। देखो, जब अच्छा। थेरापेटिक कंडीशन होती है तो हमें बहुत सारे प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। हाँ, वही ये कभी किया नहीं था एक्सपेंस में, मतलब ऐसे उसको जैसे बोलते हैं ना, बालदमा है, जी, एग्रावेट होता है वो ठंडी के बाद में, वो उसके डैडी को पता, वो बोला चला जाएगा बाद में, लेकिन अभी तो डॉक्टर ने उसको बोला है कि फुगे फुगवाने के लिए और वो प्राणायाम करने के लिए। हम्म, और सर और दूसरी बात पूछनी थी, अभी समर है ना, तो सबका मतलब ये एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो रहा है, तो मेरे क्लास में क्या मतलब कुछ आसन ऐसे स्पेशल है, या ज्यादा करवाना नहीं है, कम करवाना ऐसा है, कुछ क्या नहीं करे होगा सर? वर्षा जी, ये तो एनर्जी ड्रेन हो जाती है ड्यू टू टेम्परेचर ऑल्सो, है ना। अब इतनी गर्मी है, तो गर्मी में इतना ज्यादा परस्पिरेशन होता है, हमें पता नहीं चलता, इतनी ज्यादा एनर्जी लॉस्ट होती है हमारी, है कि नहीं। राइट। गर्मी में चाहे आप धूप में नहीं भी जाओगे तो भी बहुत ज्यादा होती है। तो उसके लिए हमें ये देखना है कि हम पूरे दिन में हम किस तरीके से अपने आप को फ्रेश रख सकते हैं। हाँ। नींबू पानी पियो, ठीक है। राइट, डिहाइड्रेशन। हाँ, डिहाइड्रेशन दूर करो अपना, राइट। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लोग कहाँ ध्यान देते हैं इन चीजों में। 8-8 घंटे पानी नहीं पी रहे हैं, कुछ भी नहीं है, तो सब कुछ लॉस्ट हो गया, आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग खराब हो गया है, तो बॉडी तो ऐसे ही फील करेगी ना, है कि नहीं। अर्ली मॉर्निंग गर्मियों में स्पेशली, आपका जो वर्कशॉप, ये कोर्स वर्कआउट वगैरह है, 6 बजे तक हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि उसके बाद फिर धूप बढ़ने लग जाती है। तो 6 बजे तक आपने ठंड ठंड में कर लिया तो सबसे बेटर है। अपना कूलिंग ब्रेथ रखो जितना रख सकते हो गर्मियों में, है ना। खाना ठंडे वाला रखो जितना रख सकते हो, जितना लाइट खाना रख सकते हो उतना लाइट खाना रखो, हैवी मत खाओ। सब चीजें होती हैं, खाली एक चीज से थोड़ी फर्क पड़ता है। पूरे दिन का रूटीन कैसा है, दिनचर्या, दिनचर्या सुना होगा आपने, है ना। दिनचर्या कैसे आप निकाल रहे हो अपनी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। खाली ये नहीं कि हम खाएंगे कुछ भी, हम वर्कआउट भी नहीं करेंगे, हम पानी भी नहीं पिएंगे, हम तो लो फील कर रहे हैं, क्या और क्या फील करोगे, तो फिर उसको समर और विंटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो कभी भी होगा, है ना। तो उसके ऊपर ध्यान देना है। राइट सर। पूरे दिन और मैं में कूलिंग ब्रेथ कर सकते हो, पूरे दिन में क्या दिक्कत है। अच्छा साफ इन्वायरमेंट लो, मास्क पहनो और कूलिंग ब्रेथ करो, गर्मी अच्छा। ज्यादा लगती है तो।
और वो जो बोला था बच्चा उसका अस्थमेटिक है तो उसको योगासन भी चलेंगे ना, करेगा ना बिल्कुल वो चलेंगे, मतलब। स्लो, फास्ट नहीं, क्योंकि जब फास्ट कराओगे तो हाइपर वेंटिलेशन होता है, हाइपर वेंटिलेशन एस्थमेटिक पेशेंट्स को नहीं जचेगा, ठीक अच्छा है, सूट नहीं करेगा। तो हमें स्लो कराने हैं सारे मूवमेंट कि वो इनहेल एक्सेल कर पाए अपने अपनी कैपेसिटी में, और उसके बाद जो मर्जी कराओ उसे, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलेगा सर, थैंक यू। यू आर वेलकम वर्षा जी। हिना जी, हो गई आपका सेशन आज का? हाँ सर, हो गया, अभी 3 बजे और एक है। अच्छा, ओके, तो आपने तो किया नहीं आज का सेशन। आज का हमने पूरा 1.5 आवर का सेशन किया, सारे प्राणायाम करे और फिर उसके बाद थोड़ा सा 20 मिनट का मेडिटेशन करा। अरे तो वाह, तो मैंने 1.5 घंटे आज मैंने टॉर्चर कर दिया सबको लगातार बिठा के काफी लंबा खींच लिया आज। नहीं, मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगी 6 बजे। जी जी जी, श्योर से श्योर, और फिर कुछ हो रहा फिर इस तो बिल्कुल बिल्कुल, फिर आप बताइएगा जो भी है एक्सपीरियंस। आज का एक्चुअली एडजस्ट नहीं हो रहा था मेरा। कोई लास्ट टाइम बात तो नहीं, मैंने किया था सेटिंग, इस बार नहीं हो पाया। इस बार नहीं हो पाया। राइट, एक्चुअली मेरा 1.5 आवर्स का रहता है और बाकी सारे लेक्चर 1 आवर्स के, तो फिर कहीं पे सेटिंग नहीं हो पाता है। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। सर आगे का जो भी होगा कुछ आपका मीन्स, तो प्लीज श्योर श्योर, यस, फॉरवर्ड करिए कि हम लोग कर पाए अगर कुछ, बिल्कुल स्पेशली बिल्कुल आयुर्वेद के ऊपर जो है वो तो मीन्स डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल हिना जी, व्हाई नॉट, मैं तो सारी चीज ट्रांसपेरेंट ही है। पर्सनली आपको बोलूंगी सर के मैंने जो नी पेन एंड नेक पेन एंड शोल्डर पेन का वो जो मीन्स वर्कशॉप किया था, उसके बाद इतना अच्छा मीन्स मैंने सारे इंस्ट्रूमेंट सर घर पे लाई हूँ, वो फोम अच्छा, रोलर, डिप फोम रोलर ने वो सब, और मैंने खुद वो उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। अभी तो मेरा नेक पेन का ही चल रहा है, उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ, उसको अंडरस्टैंड कर रही हूँ, एंड देन धीरे धीरे अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद फिर नी पेन का मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, लेकिन वो बहुत यूजफुल है रियल में सर, बहुत अच्छा लग रहा है वो अंडरस्टैंड करके। थैंक यू अच्छी सर। बात है, थैंक यू हिना जी, गुड टू नो सर दैट। मुझे तो लगता है वो आप जो अभी है ना वो सब वर्कशॉप, तो उसके पहले ही सर वो भेज दो सब प्रॉप्स वगैरह क्या लाने हैं हाँ हाँ और वर्षा क्या जी, है मैं उसके, आज भेज दूंगा, आज भेज दूंगा मैं, फिर उसके बाकियों को अलावा भी कर नहीं भेजना है। पाएंगे। श्योर हाँ श्योर हाँ, श्योर, मैं भेज देता हूँ, सारी भेज देता हूँ, क्या क्या चाहिए, ठीक है। चलेगा सर। नितिका जी, आपको कुछ कहना है? आपका नेटवर्क वेटवर्क ठीक है अभी? हाँ जी सर, मुझे आपको थैंक यू कहना है। अरे थैंक यू मत बोलो, वैसे और कुछ कहना है आई तो एम रियली ग्रेटफुल सर। बताओ। एक्चुअली आई एम ग्रेटफुल टू संजीव सर, जिन्होंने मुझे आपका बताया, अदरवाइज मुझे शायद पता ही नहीं चलता कभी संजीव भी। जी तो बहुत ही ग्रेट इंसान है। बिल्कुल सर, उन्होंने मुझे सही गाइड किया, उन्होंने मुझे सही दिशा में भेजा है, तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू और संजीव सर जी को बोलना। पन्नी सर आपको भी, जिन्होंने जो हमारे को इतना ज्ञान दे रहे हैं, तो नॉलेज बढ़ा रहे हैं सर। तो अभी लगता नहीं है सर, अभी लगता है कि अभी बहुत कुछ सीखना है, अभी और भी बहुत कुछ सीखना है। अभी हमने ये सीखा नहीं है, अभी तो हम जस्ट आपसे सुन रहे हैं। अभी अप्लाई करने के लिए हमें दोबारा ये सारा देखना है, बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल नितिका तो जी, राइटली सेड, क्योंकि सीखने हाँ की तो जी, कोई थैंक यू सर। कैपेसिटी ही नहीं है, सीखने की बिल्कुल तो सर, कोई लिमिट ही बिल्कुल। नहीं है। हाँ जी जी सर। चलो, वेरी एंड गुड, थैंक यू थैंक सो यू। मच सर, एंड सी यू ऑन फ्राइडे सर एट जी 2 जी जी PM। जी जी जी, 2 बजे मिलते हैं वो कोर्स वर्कशॉप हाँ के लिए जी, हाँ बैक वाली। जी, जी जी, ठीक है सर। ओके ओके नितिका ओके, जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू। यू। सर लेकिन आपके जैसे इंसान बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि मैं भी इस फील्ड में काफी सालों से हूँ सर, अलग अलग इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन कोई इतना सब कुछ रिकॉर्डिंग भी देना मैंने कहीं पर भी नहीं देखा है सर, रियल में सर। तो जी, रिकॉर्डिंग्स तो मैं इसलिए देता हूँ ताकि आप जो सीख रहे हो उसे आगे आप अप्लाई कर सको, क्योंकि खाली डायरेक्ट कोर्स में सब कुछ एब्जॉर्ब कर पाना बहुत मुश्किल होता राइट है ना। राइट, तो मेरा गोल ये नहीं है कि बस कोर्स कराया, पैसे कमाए और चलो भाई बाय बाय, नहीं। कोर्स कराया तो जो कराया वो आपके साथ रहना चाहिए लाइफ टाइम के लिए, तभी तो आपने वो किया। ऐसा थोड़ी कि करा और फिर भूल गए, वो नहीं होना चाहिए, है ना।
लेकिन वो सर आपकी सोच है, बाकी सब लोगों की बिल्कुल ये सब मीन्स एक ऐसा कोर्स है सर कि मैंने लॉकडाउन में किया था, काफी उसकी फीस भी थी, लेकिन मुझे करना था तो मैंने किया। उस टाइम पे उन लोगों ने बोला था आपको पीडीएफ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बाकी कुछ भी नहीं मिला। अभी मीन्स अभी तक मुझे नहीं मिला है। अब मैंने फोन करना भी छोड़ दिया है कि चलो ठीक है। मीन्स ये सब कुछ हो रहा है, और आप जो भी अपने पास है वो बस सामने वाला लेने वाला चाहिए। बस ये मैंने देखा है कि अगर रिसीव करने वाला है तो सब कुछ मिल जाएगा। तो मीन्स ऐसे इंसान बहुत आज की डेट में बहुत कम होते हैं सर, और वी आर वेरी लकी कि हम आप जैसे मेंटर हमारे हिना साथ जी, है। प्रभु से मिल रहा है, देनदार कोई और है, तो प्रभु से मिल रहा है। सर फिर मेरा तो भी कुछ भी नहीं है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। मेरा क्या है, जब मेरा ही मैंने अपना मेरा मेरा शुरू कर दिया, तो जो मैं कह रहा हूँ वो तो फिर सब कुछ गलत है। अगर मैंने या मेरा मेरा ही करने लग गया मैं, फिर तो जो मैं समझा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, वो फिर मैं उसी को नहीं फॉलो कर रहा हूँ, दैट मीन्स, है ना। तो मेरा तो कुछ भी नहीं है। तो ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है, और ये तो अच्छा है कि जो मैं अगर शेयर कर रहा हूँ, मुझे किसी से मिला, मैंने आगे शेयर किया, दूसरों के काम आया, उससे बढ़कर और क्या चीज है ना। खाली ऐसा थोड़ी कि मैंने अपने पास रख के लेके जाना है कहीं पे, कहाँ ले जाओगे, कहाँ ले नहीं जाओगे, सर, सब तो कुछ नहीं हमारी रहता। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि ऐसा जो नॉलेज है उसको हम और जगह पे स्प्रेड करें। बिल्कुल। तो बस हमारा वही मकसद रहता है कि भाई जो हमने सीखा है वो हम और लोगों को बताए। बाकी जी। वो भी कोर्स था, लोग मुझे पूछते हैं तो मैं बताती हूँ मेरे साथ ये हुआ है, हाँ कोर्स अच्छा है, लेकिन आप पहले से क्लियर करो। और यहाँ पे हम लोगों को खुद अंदर से फील होता है कि इतना अच्छा कोर्स है तो हम उसको कैसे स्प्रेड करें। बस एक लिमिटेशन आ जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट है बहुत कुछ पूछते हैं, तो वही बोलते हैं सर मैम हिंदी में है या इंग्लिश में है, क्योंकि मैं जो भी बैच ले रही हूँ वो सारी हिंदी की बैच है, सारे हिंदी के। तो इसीलिए थोड़ा बस वो एक लिमिटेशन आ जाती है। नहीं, उनके लिए मेरे पास ना आपकी तरफ से शायद 2-3 कॉल भी आए हैं हिना जी, शायद आपने किसी ग्रुप में डाला होगा तो उनकी तरफ से, लेकिन उनका भी यही था कि हिंदी में कि इंग्लिश में। तो मैंने कहा बिकॉज दूसरी कंट्री से भी एक आध लोग आ जाते हैं, तो फिर हिंदी में हो नहीं पाता। लेकिन वो तब हो सकता है उस कंडीशन में अगर उन्हीं का बैच बनाया जाए और उन्हीं के लिए कराया जाए, तो फिर हो सकता है। वो उस कंडीशन में हो सकता है, उसके लिए उन्हीं का बैच अलग से बनाना होगा और सिर्फ उन्हीं को कराना होगा, तब वो हो जाएगा हिंदी में। ओके 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 सर। तो अगर ऐसे कुछ लोग हैं, 10 एक लोग हैं जो करना चाहते हैं, तो उसमें फिर हम देख लेंगे कि चलो हिंदी में करा दो पूरा कोर्स। यस सर, तो मुझे प्लीज सर आप क्या क्या कोर्स आप ले रहे हो, क्योंकि अभी तक जितने मीन्स ये 2-3 कोर्स है उसके बारे अभी तो ये चारों कोर्स हैं जो अभी होने वाले हैं, जो आपको पता है, चारों हाँ। वर्कशॉप अभी तो ये चारों हैं। तो ये चारों हो रहे हैं, और इसमें ऑलरेडी एक दो दूसरी कंट्री के लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, तो वो तो इंग्लिश में ही होने वाला नहीं वो है। तो वो तो नहीं, इंग्लिश। मैं इस पर्पज से पूछ रही हूँ कि आप कौन कौन से कोर्स लेते हैं, तो फिर हम चॉइस दे सकते हैं कि आप में से आप कौन सा ये कोर्स करना चाहते हो, ठीक है, देन फिर हिंदी का बैच के ऐसे ठीक है। मीन्स से। तो आप कौन कौन से कोर्स लेते हैं, क्योंकि ये लेवल 1 2 3 वो मुझे पता है, लेवल टीचर 1 2 ट्रेनिंग। 3 हो गया, आसनों वाला हो गया जो आपने अभी किया, प्राणायाम वाला हो गया, आपका आयुर्वेदा वाला हो गया, ओके। ठीक है, जो अभी होने वाला है। और ये सारे वर्कशॉप्स हो गए, छोटे वाले वर्कशॉप्स हो गए, और फिलॉसफी के हो गए। फिलॉसफी के भी कोर्स होते हैं, योग सूत्र पे कोर्स है, इंडियन फिलॉसफी पे कोर्स है, भगवत गीता पे कोर्स है, उपनिषद पे कोर्स है। ओ वाओ सर, ये फिलोसॉफी के कोर्स कब है, मुझे उसकी प्लीज डिटेल भेजना अगर पातंजलि योग सूत्र का पूरा कोर्स है उसका, और बड़े ही अच्छे तरीके से है वो, बहुत ही प्यारे तरीके से, कि किस तरीके से एक समझ सकते हो, खाली बुक की तरह नहीं कि एक सूत्र से लेके 195 पढ़ ले, नहीं, कैसे एडजस्टमेंट्स हैं, यहाँ से कभी वहां से, कभी यहाँ से कभी वहां से, क्योंकि सारा इंटर रिलेशन है हर चीज का। तो उस तरीके से तो वो कर सकते हैं मेरे ख्याल से, वो मई जून के बाद ही, क्योंकि अभी तब तक तो मेरे हैं कुछ ना कुछ फिक्स चीजें, तो वो भी कर सकते हैं। वो भी हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है। नहीं, वो डिपेंड तो करता पर्सनली मैं इंटरेस्टेड हूँ उस कोर्स के लिए, फिलोसॉफी वाले तो। लेकिन बाकी जो ये आसन का रहेगा या फिर लेवल 1 के ऐसा कुछ मीन्स, अभी तो उन लोगों का फोकस सिर्फ आसन और क्लास किस तरह से लेना है। तो मीन्स उन्हें आसन वाला ही बोल दो कोर्स, जो आसन वाला है ना, उसी के लिए बैच बना लो, उनका आसन वाला ही कर देते हैं, ओके सर, ओके। है तो ना। मीन्स उन्हीं मैं
हाँ, सिंपल आसन वाला ही कर देते हैं उनका, 2-2 घंटे वाला जो Right. था, जैसे आपने किया है वही वाला हाँ, कर देते हैं। ओके ओके सर, तो वो हिंदी में ही कर लेंगे उसको, क्योंकि फिर ओके, मैं उसे बाहर प्रमोट नहीं करूंगा ना, उसे सिर्फ राइट आपका बैच होगा वो, और वो उन्हीं के लिए सिर्फ यहीं पे कर देंगे, जैसे भी उनको करना है। राइट मतलब राइट, लैंग्वेज हिंदी रहेगी, 2-2 घंटे हम वो 10 दिन का एक साथ कर लेंगे। ओके ओके, ठीक है सर, तो मैं बात करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है आजकल पहली लोगों की प्रेफरेंस आसन ही है। लोग मेन योगा वही में है। योगा में आसन ही है हर किसी। एक आपकी वो किसी दीप्ति शाह जो है, दीप्ति शाह आप ही की यस शायद ना, यस, उनका तो गोल बहुत ही वैसा है कि मुझे तो अपना कोई वो खोलना है और मुझे हर टाइप के योगा आनी चाहिए। मैंने कहा हर टाइप के योगा मतलब, तो उनका पूरा गोल वो आसन वाला ही था, तो मुझे ये भी आना चाहिए, मुझे वो भी आना चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है। सर मैंने स्ट्रिक्टली लिखा था कि आप पहले मैसेज करो, सर का परमिशन लो, देन कॉल करो, लेकिन इस चलते ही मैं ज्यादा नंबर शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि पता है मुझे मेरे मोबाइल पे भी कभी भी फोन आ जाता है, तो नहीं, वो इसीलिए कोई, मैंने मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, फोन आना नहीं चाहिए, फोन आने से दिक्कत नहीं है। मतलब उनकी थॉट प्रोसेस भी क्लियर है ही नहीं, उन्हें करना क्या है, यस यस यस, थॉट प्रोसेस राइट। क्लियर नहीं है। आपके उसने साथ मेरे एक को बार बोला था करेगी मेरा, ना, आपके साथ एक बार कोर्स करेगी को उसको क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी। लेट्स सी, राइट, थोड़ा कोई टाइम लगता है। है ना, बहुत सारी कैटेगरी है माइंड की, विकसित मूड तो होता रहता है थोड़ा। मोस्टली तो हम अब उसी में विक्षिप्त और क्षिप्त और उसी में मूड में ही घूम रहे हैं सारे के सारे, राइट राइट, है ना। तो बस अब बोला है एक बिंदु करके है, उसका शायद कॉल आएगा सर, बिंदु बोरा वो का मैं भी आ गया, बिंदु बोरा का भी आ आ गया। गया कल। यस, कल ही उसने मेरे से बात की, और इतने सारे क्वेश्चन मेरे को भी आ जाते हैं, सर कहाँ से है, क्या करते हैं उन्होंने, इसीलिए कल मेरे कभी दिमाग में आया ही नहीं कि मैं सर कहाँ से, मुझे अभी भी नहीं पता है, तो मैं बोली मुझे कुछ नहीं पता है, बस मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ, तो आपको जो क्वेश्चन है वो आप पूछ लीजिए, जी मुझे जी कुछ जी। नहीं मालूम। तो आज की डेट में सर बहुत लोगों कम को लोग हैं। लोगों को बैकग्राउंड से बहुत फर्क पड़ता है कि यस बैकग्राउंड यस कौन यस, है। और वही फिर सरेंडर कहाँ से होगा सर, इस टाइप से। वो यस, रिस्ट्रिक्शन है ना लेकिन अभी। ठीक है, आ गए है ये। यस यस यस। यस, काफी अच्छा लगा सर, रियल में मीन्स फिलोसॉफी का तो करना ही है सर आपके साथ, क्योंकि आपने जो योग सूत्र ने उसके बारे में इस बीच बीच में जो बताया, काफी कुछ क्लियर हुआ है सर। सारी चीज तो वही है, योग की सोल है, वो आत्मा है ना, योग की आत्मा है योग सूत्र। अगर उसे समझ लिया ढंग से तो योग अपने आप ही समझ आ जाएगा, फिर ये सब सारे मिथ दिमाग से निकल जाएंगे, आसन करने के, प्राणायाम करने के, सब कुछ करने के। योग, दिक्कत ये लोगों ने सोल को नहीं जाना, वो सिर्फ योग कर रहे हैं, वहां दिक्कत है। सबके साथ प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने सोल को नहीं जाना, उसे नहीं फील कर रहे हैं और उसको नहीं जी रहे हैं। जब तक आप सोल को नहीं जियोगे तो आप कैसे उसकी बॉडी को कर पाओगे। तो सब बॉडी पे लगे हुए हैं, सोल आत्मा को किसी ने जाना ही नहीं। तो योग आत्मा है, योग दर्शन। जब आपने योग दर्शन के दर्शन नहीं करे ढंग से, कैसे वो करोगे, राइट नहीं हो राइट, पाएगा। यस सर। तो बस वही है, इतना सा ही खेल है। इतने से खेल को जानना है हमने। रियल में सर सिर्फ ये प्राणायाम, मुद्रा, मेडिटेशन वो नहीं, लेकिन एक लाइफ को देखने का जो नजरिया है वो चेंज हो गया है सर ये वर्कशॉप से, ये या इससे आगे का भी जो भी मीन्स आपके साथ जो भी वर्कशॉप किया है, पूरा चेंज हो गया कि हाँ ये हो रहा है, अब दिमाग उस पे जा रहा है कि यस कहाँ पे रुकावट है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, बस कैसे क्या करना है, बस वो रिजल्ट पे आ जाता है, ये करो और बस निकलो। राइट राइट राइट। यस, तो ऐसे अच्छा ही लग रहा है सर। गुड। हम, मेरा भी प्लेजर है कि ये सब चीज़ें भगवान की दया से ही होती हैं, कि ऑल बिकॉज ऑफ गॉड ग्रेस हम एक दूसरे से मिलते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाले लोगों से मिलते हैं, जिसे जो चाहिए होता है उसे वो वैसे ही मिल जाता है ना। तो ये सारा का सारा भगवान कृष्ण का करा धराया है, तो सब चीज़ें वही कराते हैं, सारी चीज़ें हम तो बस चलने वाले हैं, जैसा वो चलाना चाहते हैं वैसे चलते रहो, और क्या कर सकते हैं। राइट, बस और सही में सर मेरी लाइफ में तो यही हुआ है।
हर थी किसी की मैं लाइफ में ये कुछ होता है। और मुझे यहाँ पे लाया गया है, एंड देन ऐसे इतने सारे एक्सपीरियंस सर के मैं से एकदम जीत पे अड़ जाती थी कि ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो मैं ये छोड़ दूंगी। और मीन्स वो लेवल था सर मेरा कि मीन्स उससे भी जीत कर के अड़ गई थी, बस नहीं ये एक्सपीरियंस नहीं होगा तो मैं ये करूंगी ही नहीं। मीन्स इस लेवल पे उसने साथ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहुंचाना है तो वो सच्ची में कोई ना कोई जरिया बन ही जाता है बन ही अगर जाता अपने को वो आगे बढ़ाना है। राइट राइट, बिल्कुल, राइटली सेड।